Assalamu alaikum. Hello student, how are you? I am fine and I hope you are also fine. Today we will discuss numerical question 4.8 and the given data is two blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by the two strings as shown. Find the tension in each string. Figure given on your book. Two masses, one is 3 kg and second is 5 kg, and two strings produce two tension. Let us suppose that is M1 and its tension is T1. Two blocks of masses 5 kg and 3 kg, one block, second block, are suspended by the two string. That is one string and that is two string. From this point, one is the string and that is the second string. This string hanging 3 kg mass and upper position that is hanging two masses M1 and M2, both masses. Now we apply first of all. Suppose that for T1, and we know that tension is equal to weight. So T1 is equal to W1, and we know that W is equal to mg. And what is the value of mass? Mass is M1. So T1 is equal to M1g. So tension in first string that is equal to mass 3 multiply 10, the value of g that is constant. 10 multiply 30 is 30 Newton. So tension in first string is 30 Newton. Now we find out the T2. We know that tension is equal to weight and weight is equal to mg. What is the value of weight for second string? That is the sum of m1 and m2. That is the sum of m1 and m2. So mass is m1 plus m2 into g. The value of m1 is 3 and the value of m2 is 5. 3 plus 5 multiply g. The value of g is constant, gravitational acceleration, that is equal to 10 meter per second square. 3 plus 5, 8 multiply 10, 80 Newton. So we find out the tension in each string. T1 in first string and T2 in second string. And we know that tension is equal to weight. So we apply the formula tension is equal to weight. I hope English medium student clear everything. So we discuss this question for English and as well as for Urdu medium student. And now for Urdu medium student, statement है जी two blocks of masses 5 kg and 3 kg
दो ब्लॉक के मासेस हैं, एक 3 kg का है और दूसरा 5 kg का है। जो नीचे वाला है वो इस धागे के साथ बांधा हुआ है या लटकाया हुआ है, और जो ऊपर वाला है, जब हम ऊपर वाले की बात करेंगे उसके साथ 5 kg भी है, वो लटकाया हुआ है, और जो नीचे वाला 3 kg वो भी लटकाया हुआ है। ये वो डायग्राम है जो आपकी किताब के ऊपर दी हुई है। उसी डायग्राम को हम यूज करते हुए दोनों धागों के अंदर टेंशन मालूम करना चाहते हैं। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। हर धागे के अंदर उसकी जो टेंशन है वो मालूम कीजिए। तो जब हम सबसे नीचे वाले धागे की बात करते हैं तो ये जो टेंशन है डेफिनेट, इसका डिपेंड सिंपल नीचे वाले के ऊपर है। तो क्योंकि टेंशन वेट के इक्वल होती है और इसको हमने सपोज कर लिया है T1 और नीचे वाले मास को हमने सपोज किया है M1, तो इस वजह से हम कह रहे हैं T1 इज इक्वल टू W1, सो T1 इज इक्वल टू M1G। सो T1 इज इक्वल टू M1 की जो कीमत है 3 वो लगाई, और G की कीमत कांस्टेंट है, वो ऑलरेडी आपको याद हो चुकी होगी। यूनिट नंबर 2 में हमने इसको देखा था। तो 10 वैल्यू है इसकी, ये हमने 10 वैल्यू इसकी अप्लाई की, तो 3 × 10 जो है ये 30 हो गई। अब हमने क्या करना है, अब इसकी हमने टेंशन फाइंड कर ली है। अब हमने टेंशन फाइंड करनी है ऊपर वाले की। जब हम ऊपर वाले की टेंशन फाइंड करते हैं तो उसमें M1 भी आ जाता है, उसमें M2 भी आ जाता है। बेशक M1G प्लस M2G कर लें, या सिंपल ये कह लें कि M1 प्लस M2 उन दोनों को हमने सम किया, इस मास को और इस मास को हमने सम किया, क्योंकि सिर्फ अब हम इसकी बात कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई हमने G से किया जो कांस्टेंट वैल्यू है। 3 + 5 क्या हो गया, 8 हो गया। 8 × 10 80 हो गया जी। तो टेंशन जो है इसकी कीमत हमने निकाल ली 80 न्यूटन। स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं टेंशन के यूनिट की वजह से, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेंशन। द यूनिट ऑफ टेंशन इज न्यूटन। What is the unit of weight? The unit of weight is Newton. It means that कि तीनों वैल्यूज का यूनिट सेम है। फोर्स का यूनिट भी न्यूटन, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन, और जो हम वेट वजन निकालते हैं उसका यूनिट भी न्यूटन। तो आई होप कि आपको जो एंड पे जाकर आपने इसका यूनिट लिखना है, जिसका एग्ज़ाम के अंदर 0.5 नंबर होता है, आधा नंबर होता है सिर्फ एंड पर यूनिट लिखने का, तो आई होप कि आपका वो क्लियर होगा और आप किसी किस्म की यहाँ मिस्टेक नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। आई होप आप फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हैं जी। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ।